Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the class. Welcome to the RK Pharma. Today we are going to discuss एम्स भुवनेश्वर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका फार्मासिस्ट का है. ठीक है, ये है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो कि हुआ था 31 अक्टूबर 2023. ठीक है, सो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए. एंड जिन जिन लोगों को अप्लाई करना है, मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करो, देख के जाओ एक बार. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास इज which liquid oral dosage form typically consists of mixture of oil and water required shaking before the use. The first question, which liquid dosage form typically consist of mixture of oil and water require shaking before the use, that is होता है emulsion. क्या होता है? Emulsion. Which liquid dosage form are typically consist of mixture of oil and water require shaking before the use, that is emulsion. Next question, question number 2, which organ produce hydrochloric acid and pepsin for protein digestion, that is stomach. क्या होता है? Stomach होता है. Which organ produce hydrochloric acid and pepsin for the protein digestion is stomach. Next question, question number 3, which of the following sexually transmitted disease is caused by bacterium and can lead to the chronic pelvic pain and fertility issue if left untreated, that is chlamydia. Which of the following sexually transmitted disease is caused by bacterium and can lead to the chronic pelvic pain and the fertility issue it left untreated, that is chlamydia. Got it? Moving to the next question, question number 4, which organ system is responsible for supporting the body, protecting internal organ and facilitating the movement, that is skeletal system. Which organ system? Skeletal organ system is responsible for supporting the body, protecting internal organ and facilitating the movement. Option 4th is correct one. Next question, question number 5th, which of the following is not common surface infection caused by bacteria, that is ringworm. क्या होता है? Ringworm. Which of the following is not a common surface infection caused by bacteria? तो ये होता है ringworm. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन का लेवल भी देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीबायोटिक. कॉमन एग्जाम्पल पूछा है एंटीबायोटिक का, तो ये एंटीबायोटिक क्लास में आइबुप्रोफेन भी नहीं आता. एस्पिरिन वगैरह किसका पार्ट है? ये नासाइड का पार्ट है. और एंटीहिस्टामाइन तो ऑलरेडी स्पेसिफाई करके दिया है. बचा क्या? पेनिसिलिन. तो पेनिसिलिन इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक. ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. In compounding pharmacy, what is the critical consideration when working with a powder medication? In compounding pharmacy, what is the critical consideration when working with powder medication? So, that is minimizing the exposure to airborne particle. Option 2nd is the correct one. Moving to the next question, question number 8. In digestive system, what is the primary function of small intestine? In the digestive system, what is the primary function of the small intestine? तो ये होता है absorbing nutrient. प्राइमरी फंक्शन क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का? प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो ये होता है दैट इज absorbing nutrient. Option 1st is correct one. Moving to the next question, question number 9. In the clinical pharmacy, what does OTC means? सबसे आसान क्वेश्चन है. OTC मीन्स क्या होता है? ये होता है ओवर द काउंटर. क्या होता है? ओवर द काउंटर. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. What is SLS stand for the size separation process? क्या होता है SLS? तो SLS होता है दैट इज स्टैटिक
लाइट स्कैटरिंग। क्या होता है? स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। किसमें पूछा है? साइज सेपरेशन का। साइज सेपरेशन में जो प्रोसेस होता है SLS, जिसे बोला जाता है स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग। स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसको छोड़ देती हूँ, हिंदी में अटेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग? तो इनमें से पूछा है कॉमन एंटीवायरल ड्रग, तो ये क्या होता है? तो ये होता है दैट इज ओसेल्टामिविर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द माउथ एंड स्टमक एंड एड्स इन द स्वallowing? तो क्या कनेक्ट होता है माउथ एंड स्टमक? क्या कनेक्ट होता है इसमें? इसमें कनेक्ट होता है ईसोफेगस। क्या कनेक्टेड होता है इन द स्वallowing? ईसोफेगस। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। What does SES signify the contest of size separation? ठीक है, तो ये क्या होता है? SES ये होता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। क्या होता है? साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which historical civilization is known for its significant contribution to field of pharmacognosy? Which historical civilization is known for its significant contribution to field of pharmacy? तो ये होता है that is ancient Egypt. क्या होता है? ancient Egypt. Option second is the correct one. Next question, question number 18। बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में अटेंड किए हैं, इसको मैं कन्वर्ट करके दे दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग? व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग? तो ये होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, what is the term for the ability of microorganism to resist the effect of antimicrobial drug? ये होता है resistance. Next question, question number 21. Second. Which component of central nervous system is responsible for the processing of sensory information and higher order thinking? Which component of CNS is responsible for the processing of sensory information and higher order thinking? तो ये होता है that is cerebrum. क्या होता है? cerebrum. ठीक है, आपको बताना है ब्रेन बॉक्स किसे कहा जाता है। आपको क्या बताना है? ब्रेन बॉक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Which type of surface infection is caused by fungus and often affect the feet, leading to itching and peeling the skin? तो ये क्या होता है? ये होता है फंगल इन्फेक्शन। क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। Which type of surface infection is caused by fungus, often affect the feet, feet को अफेक्ट करता है, and leading to itching and peeling the skin? तो ये होता है फंगल इन्फेक्शन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। What is the NPO mean when written on the patient chart or order? तो NPA क्या होता है? ये होता है नथिंग बाय माउथ। क्या होता है? नथिंग बाय माउथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। In the context of drying process, what is lyophilization commonly known as? बहुत बार पूछा गया है लायोफिलाइजेशन वाला क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड है। जितने भी एग्जामिनेशंस आए हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो लायोफिलाइजेशन जो होता है ये होता है फ्रीज ड्राइंग। क्या होता है? फ्रीज ड्राइंग।
लायोफिलाइजेशन क्या होता है? फ्रीज ड्राइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. विच एसटीडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ईची पैरासाइट इन्फेक्शन ऑफ द प्यूबिक हेयर रीजन एंड इज कॉज्ड बाय द क्रैब लाउस. तो क्या होता है ये होता है दैट इज थायरस प्यूबिस. ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. In the pharmaceutical clarification and filtration, UFTP typically refers at. बहुत इसके फुल फॉर्म पूछे हैं. UFDF क्या होता है? UFDF क्या होता है? तो ये होता है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डाई फिल्ट्रेशन. क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड ड्राई फिल्ट्रेशन, UFDF. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. Which drug classification include medication that are used to treat and prevent the nausea and vomiting caused by chemotherapy और सर्जरी. तो सबको पता है क्या जो ऐसा ड्रग जो यूज टू प्रिवेंट करता है नॉशिया एंड वोमिटिंग, तो ये कहलाते हैं एंटी इमेटिक. क्या कहते हैं? एंटी इमेटिक. सबको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डेफिनेशंस भी आपको करके जाना है. व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमैटोग्राफी प्ले इन फार्माकोग्नोसी. क्या रोल प्ले करता है क्रोमैटोग्राफी इन फार्माकोग्नोसी? तो आपको क्रोमैटोग्राफी एनालिसिस में भी पढ़ना है एज वेल एज फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ना है. ठीक है, फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ना है एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी आपको क्रोमैटोग्राफी पढ़ना है. तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमैटोग्राफी प्ले इन फार्माकोग्नोसी. फार्माकोग्नोसी में क्या रोल प्ले करता है क्रोमैटोग्राफी? तो ये प्ले करता है आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग द केमिकल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट. क्या करता है? आइडेंटिफाई एंड सेपरेटिंग द केमिकल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स. ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. किस भाई साहब का क्वेश्चन पेपर है पता नहीं, बहुत सारे हिंदी में अटेंड किए. विच मैनेजमेंट थियोरिस्ट emphasize the importance of human relation and the employee motivation. Which management theorist emphasize the importance of the human relation and employee motivation? तो ये है दैट इज एल्टॉन मायो. क्या है? एल्टॉन मायो. ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन. Moving to the next question, which financial statement represent a company's financial position at specific point in time? Which financial statement represent a company financial position at a specific point in the time? ये होता है बैलेंस शीट. क्या होता है? बैलेंस शीट. DSBM के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है. बैलेंस शीट क्या होता है, जनरल क्या होता है, अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्या होता है, देन बैलेंस शीट क्या होती है. ठीक है, सब पता होना चाहिए आपको. बजट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडिंग द अल्कोहल टू लिक्विड. क्या पर्पज होता है अल्कोहल को लिक्विड में ऐड करने का इन द ओरल डोसेस फॉर्म सच एज टिंचर. तो इसमें होता है टू प्रिजर्व द मेडिकेशन. क्या प्राइमरी रोल होता है? टू प्रिजर्व मेडिकेशन. ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. Which hormone is responsible for stimulating uterine contraction during the childbirth and milk ejection during the breastfeeding? तो ये भी आपको पता है, ये होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन. क्या होता है? ऑक्सीटोसिन. क्या रोल होता है और ऑक्सीटोसिन का? Which hormone is responsible for stimulating uterine contraction during the childbirth and milk ejection during the breastfeeding? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन. ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. सबसे ज़्यादा तो मुझे फुल फॉर्म ही दिख रहे हैं. व्हाट डज COI स्टैंड फॉर इन द लीगल इथिक्स. लीगल इथिक्स में COI का क्या किस मतलब से स्टैंड करता है? तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ऑप्शन ए इज फर्स्ट इज द करेक्ट वन. Moving to the next question, question number 40. In the clarification and filtration process, the acronym PP commonly represent. क्या रिप्रेजेंट कराता है PP? तो ये होता है पॉलीप्रोपेलिन.
क्या होता है? पॉलीप्रोपेलिन। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू एज अ सनशाइन विटामिन? सबसे आसान क्वेश्चन, सनशाइन विटामिन क्या होता है? बिकॉज ऑफ द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट विद द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो ये होता है दैट इज विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। विटामिन डी अल्सो नोन एज, आपको बताना है फिर, ओके और इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी ये बताना है कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग इन द मैनेजमेंट? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग इन द मैनेजमेंट? तो क्या होता है? ये होता है सेटिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का? तो सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस था। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस इन इट्स इनिशियल स्टेज? क्या होता है सिफिलिस का इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स? तो ये होता है जेनाइटल सोर्स और अल्सर। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, what does the term Schedule H refer to in the context of pharmaceutical legislation in India? What is this term? Schedule H refer in the context of pharmaceutical legislation in India. तो क्या होता है? Schedule H क्या रेफर करता है? तो इसमें होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओनली। क्या होता है? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओनली। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 46 कर लेते हैं। What is the common excipient used in the powder medication to improve the flowability and prevent caking? What is the common excipient used in the powder medication to improve flowability and prevent the caking? तो flowability इंक्रीज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इसमें यूज़ करते हैं ग्लाइडेंट का। फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लाइडेंट का। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, which sexually transmitted disease is known to significantly increase the risk of cervical cancer in the women? Which sexually transmitted disease is commonly is known to significantly increase the risk of cervical cancer in women? तो ये क्या होता है? ये होता है दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑप्शन fourth is the correct one. Moving to the next question, question number 48, what is the primary purpose of credit score? What is the primary purpose of credit score? क्या होता है primary purpose credit score का? तो ये होता है to evaluate the person credit worthiness. क्या होता है? To evaluate the person credit worthiness. Option fourth is the correct one. Next question, question number 49, which gland is often referred to as the master gland of endocrine system? सबसे इजी सा क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है? ये होता है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कहाँ प्लेस होता है? इसका लोकेशन कहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का? आपको बताना है लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत कम मिलेंगे कि मास्टर ग्लैंड क्या होता है, ये क्या होता है। इससे ज़्यादा आपको पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का, मास्टर ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको कमेंट करना है कि लोकेशन कहाँ होता है मास्टर ग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर द अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट एंड ऑफन एडमिनिस्टर इन द स्मॉल क्वांटिटी? विच liquid dosage form is typically used for the alcohol based medicinal extract for and often administered in the small quantity? तो ये क्या होता है? ये होता है एलिक्सर। जितने भी टर्म्स है, डिफिनेशंस है, लिक्सर हो, इमल्शन हो, सस्पेंशन हो, सोल्यूशन हो, सिरप हो, ड्राउट्स हो, डाउचेस हो, जितने भी आते हैं, ठीक है, माउथ वॉश क्या होता है, माउथ पेंट क्या होता है, थ्रोट पेंट क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे टर्म जो आपको नहीं पता है, सारे के सारे आपको रेफ़र करना है। एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा, बाय करने के लिए लिंक दे रखा है, बाय कर लीजिएगा। और जितने जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, एग्जामिनेशंस में नहीं आ पाते आपको, तो उसमें जो होता है ना, इसमें क्या टाइप का ये होता है,
OW बेस होता है, WO बेस होता है, किस टाइप का इमल्शन होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। इन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डज LIMS, क्या होता है LIMS? तो ये होता है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. The central nervous system comprises which two major component? The central nervous system comprises which two major component? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो PNS का क्या क्या पार्ट होता है आपको बताना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और आपको बताना है क्रैनियल नर्व कहाँ से अराइज होती है, क्रैनियल नर्व कहाँ से अराइज होती है वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54. व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द डिफरेंट एसेट क्लासेस टू रिड्यूस द रिस्क? What is the term for the process of spreading investment across the different asset class to reduce the risk? तो क्या होता है ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. Which STD is known as silent infection because it often has no symptoms, especially in the women? इससे ये होता है क्लैमाडिया। क्या होता है? क्लैमाडिया। Which STD is known as the silent infection because it often has a no symptoms, कोई symptoms नहीं दिखाई देता है, especially in the women? तो ये होता है क्लैमाडिया। क्या होता है? क्लैमाडिया। ऑप्शन A is the correct. First is the correct one. Moving to the next question. Question number 57. What is the purpose of legal malpractice insurance? What is the purpose of legal malpractice insurance? तो क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है to protect attorneys from the financial liability in case of negligence. Option A is the correct one. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. What is the term for the inappropriate use of antimicrobial drug which can contribute to the microbial resistance? What is the term for inappropriate use of antimicrobial drug which can contribute to the microbial resistance? That is antibiotic misuse. क्या होता है? Antibiotic misuse. Option A is the correct. First is the correct one. Moving to the next question, question number 60. Which of the following best describe the mechanism of action and primary therapeutic effect of decongestant in the treatment of nasal congestion? तो क्या होता है? ये होता है they constrict the blood vessel in the nasal passage to reduce swelling and alleviate the congestion. क्या होता है? They constrict the blood vessel in nasal passage to reduce swelling and alleviate the congestion. Option third is the correct one. Next question. Question number 61. The scope of pharmacognosy include the study of. क्या होता है स्कोप ऑफ फार्मेसी के फार्माकोग्नोसी के स्टडी में क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें इंक्लूड होता है मेडिसिनल प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट। क्या स्कोप होता है? मेडिसिनल प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। Moving to the next question, question number 62. What is the acronym COPD stand in the drug classification? COPD क्या स्टैंड करता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्या स्टैंड करता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. Which STD can be transmitted through the unprotected oral, vaginal or anal sex and is caused by the HCV? HCV. तो ये क्या होता है? हर्ब्स होता है। क्या होता है? हर्ब्स।
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. What does the RS signify on the prescription or the medication label? ये क्या होता? What does RX signify on the prescription or the medication label? तो RX क्या सिग्निफाई करता है? RX सिग्निफाई करता है यूटेक वगैरह, इसका मीनिंग होता है यूटेक. तो अकॉर्डिंग टू दे ये प्रिस्क्रिप्शन फिल किया है, पता नहीं क्यों. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. What is the term for the powder that are intended to be inhaled into the lungs for respiratory condition? तो क्या होता है, सबको पता है, इंसफलेशन. ठीक है. What is the term powder that are intended to be inhaled into the lungs for the respiratory condition? तो ये होता है इंसफलेशन. ऑप्शन 4th is the correct one. Moving to the next question. Question number 70. What is the purpose of controlling function in the management? What is the purpose of controlling function in the management? तो मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है? तो ये होता है दैट इज मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस. क्या होता है? मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस. ऑप्शन 4th इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. In non-sterile manufacturing, what does CAPA stand for? क्या करता है CAPA का मैन्युफैक्चरिंग इन द नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या स्टैंड करता है CAPA? तो ये होता है करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन. क्या होता है? करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन, CAPA इन द नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग. आपको ये भी याद रखना है कि किस में क्या होता है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, जिनको हिंदी समझ में आता है पढ़ लेना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन व्हाट डज DE कॉमनली स्टैंड फॉर? पढ़ना आता है बट देखिए ना किस तरह लिखा गया है, और मुझे हिंदी में क्वेश्चंस नहीं समझ में आता ऐसे. ठीक है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, जो है वो है. इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन व्हाट डज DE कॉमनली स्टैंड फॉर? क्या होता है DE इन द क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन? तो ये होता है दैट इज डाइटोमासियस अर्थ. ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल इन द बॉडी? तो कॉर्टिसोल का प्राइमरी फंक्शन होता है इन द बॉडी, क्या होता है? रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल. ऑप्शन 2nd इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77. व्हाट इज द टर्म फॉर द मिक्सचर ऑफ पाउडर, medication and liquid often used for oral administration? What is the term for the mixture of powder, medication and a liquid often used for the oral administration? ये होता है सस्पेंशन. क्या होता है? सस्पेंशन. आपको बताना है सस्पेंशन कितने टाइप के होते हैं. ठीक है. What is the primary function of Federal Reserve in United States? तो क्या होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेडरल रिजर्व इन द यूनाइटेड स्टेट? तो ये होता है मॉनिटरी पॉलिसी. ऑप्शन मॉनिटरी पॉलिसी. ऑप्शन 4th इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग द मेडिकेशन सेफ्टी विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग? तो क्या होता है? मॉनिटरिंग द पेशेंट मेडिकेशंस रेजिमेन टू प्रिवेंट एंड एड्रेस द मेडिकेशंस एरर. क्या होता है? Monitoring patient medication regimen to prevent and address the medication error. Option 1st is correct one. Moving to the next question, question number 80. Which mineral is essential for maintaining the strong bone and teeth is commonly found in the dairy product? सबसे आसान क्वेश्चन है. तो क्या होता है? कैल्शियम. क्या होता है? कैल्शियम. ऑप्शन 4th is correct one. Moving to the next question, question number 81. Which drug classification include the medication that are used to treat bacterial infection by inhibiting the synthesis of bacterial cell wall? तो क्या होता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करता है? इनिबिट करता है. क्या करता है? इनिबिट करता है. तो ये होता है एंटीबायोटिक. क्या होता है? एंटीबायोटिक. Which drug classification include medication that are used to treat bacterial infection? क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, बट कैसे? बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल. ये होता है एंटीबायोटिक.
ठीक है, आपको बताना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी आई थी। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि आपने पेनिसिलिन जी के बारे में सुना है। पेनिसिलिन जी, तो ये जी क्या स्टैंड करता है, ये जी का मतलब क्या होता है, जी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इन फार्माकोग्नोसी द टर्म एंथोफार्माकोलॉजी रेफर्स टू इथनो इन फार्माकोग्नोसी द टर्म एथनोफार्माकोलॉजी रेफर्स टू, क्या रेफर करता है, तो ये रेफर करता है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। क्या रेफर करता है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द टर्म फॉर द ड्रग इंटरैक्शन वेयर one drug enhance the effect of another drug beyond what is the expect, तो ये होता है पोटेंशिएशन। क्या होता है, पोटेंशिएशन। what is the term drug interaction where one drug enhance the effect of another drug beyond that is potentiation। क्या होता है, पोटेंशिएशन। ऑप्शन 4 is correct one। moving to the next question, question number 84, which of the following is common application of computer in clinical decision support system, that is CDSS। क्या होता है common applications, तो ये होता है प्रोवाइडिंग ड्रग इंटरैक्शन अलर्ट। क्या होता है, प्रोवाइडिंग ड्रग इंटरैक्शन अलर्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। 81 के बाद नहीं 83 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट डज द HPLC स्टैंड इन द फार्माकोलॉजिकल एनालिसिस। क्या होता है HPLC, तो ये होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। क्या होता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। ऑप्शन 3 is correct one। Moving to the next question, question number 86, what does the acronym SSRI stand for in drug classification? SSRI क्या होता है SSRI, तो ये होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। क्या होता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, what hormone regulate the body's circadian rhythm and sleep wake cycle, तो क्या होता है, ये होता है मेलाटोनिन। क्या होता है, मेलाटोनिन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डज द एनसेड स्टैंड फॉर द ड्रग क्लासिफिकेशन, तो सबको पता है एनसेड क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 90, who is often referred as the father of scientific management, तो क्या है ये, फ्रेडरिक टेलर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, फ्रेडरिक टाइलर। हु इज द ऑफन रेफर एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट इन द ड्रग क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट इन द ड्रग क्लासिफिकेशन, तो इसका प्राइमरी पर्पज जो होता है ये होता है टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफन यूज इन द ट्रांसप्लांट पेशेंट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज STD, which STD is caused by the parasite known as Sarcops scabi and result in the intense itching and skin rashes, तो ये होता है स्कैबीज। क्या होता है, स्कैबीज। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ, किससे कंसिस्ट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो इसमें होता है हार्ट होता है, आपका ब्लड वेसल होता है एंड ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड किस टिश्यू का एग्जाम्पल है, ये भी पूछा जाता है आपको। बोन किस टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, आपको वो भी करके जाना है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल क्या होता है, ये भी आपको करना है ये पार्ट। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आता है हार्ट, आपका ब्लड वेसल एंड ब्लड आता है। नेक्स्ट,
What is the term for the microorganism that are resistant to multiply the type of antimicrobial drug? What are the terms for microorganism that are resistant to multiply the types of antimicrobial drug? तो ये होता है सुपर बग. क्या होता है? सुपर बग्स. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग इन द ड्रग क्लासिफिकेशन? क्या होता है प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग? तो इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है ये होता है टू रिलीव द क्रैम्प्स एंड स्पाज्म. ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन. टू रिलीव द मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. Which mineral is required for the formation of strong teeth and bones is often added to drinking water? Which mineral? तो कौन सा मिनरल होता है? ये होता है फ्लोराइड. क्या होता है? फ्लोराइड. Which mineral is required for the formation of strong teeth and the bones is often added to drinking water? ये होता है फ्लोराइड. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. एक्रोनिम पूछा है ADHD का इन द ड्रग क्लासिफिकेशन. तो ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. किस पे? ड्रग क्लासिफिकेशन में. सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. व्हाट इज RPC रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल एथिक्स? व्हाट इज RPC रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल एथिक्स? तो ये होता है रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट. क्या होता है? रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन. तो फाइनली 100 क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में. तो आपने देखा है अभी तक के जितने भी 100 क्वेश्चंस हमने इस सीरीज़ में कंप्लीट किए हैं, तो इसमें एक्रोनिम बहुत पूछे हैं. क्या पूछा है? एक्रोनिम बहुत बार पूछा है. तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना होगा कि आपको एक्रोनिम भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो जितना भी मैंने सिलेबस कवर अप किया है और कर रही हूँ सारा आपको कवर करना है. और सिलेबस का जो PDF आपको मैंने टेलीग्राम पे दिया है या फिर मैंने ऑलरेडी चैनल पे भी कंडक्ट किया है कि क्या क्या आपको कवर अप करना है. ठीक है. और आप जो GK होता है आपको GK कवर अप करना है लुसेंट से. और जो भी आपके अवार्ड सेरेमनी अवार्ड वगैरह होता है, रिसेंट स्पोर्ट में जो भी एक्टिविटी हुई है वो सब आपको कवर अप करके जाना है. 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड होगा. कंप्यूटर के बेसिक टर्म भी आपको पूछे जाएंगे. और ये कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है. ये आपका कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है. इसमें आपको मैथ्स वगैरह तो दिया नहीं है, बट GK और कंप्यूटर आपको करके जाना है. हर एक एम्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट एक कॉमन रिक्रूटमेंट है. तो इसमें आपको जो दिया है सिलेबस स्पेसिफाई जो किया है 75:25 का जो रेशियो दिया है आपको फार्मा एज वेल एज नॉन फार्मा, उस हिसाब से आपको पढ़ के जाना है. एग्जामिनेशंस के लिए ओनली 30 डेज आपके पास है. तो जिन लोगों ने अब तक पढ़ा है, RRB के लिए पढ़ रहे हैं या फिर जिनका अच्छा खासा प्रिपरेशन है अब तक का, बस वही लोग अप्लाई कीजिएगा क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है. मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके पैसे वेस्ट हो. अगर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है खुद पे कि मैं कर सकती हूँ कर सकता हूँ, तो ही आपको अप्लाई करना है. या फिर आपकी रिस्क है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो. ठीक है, आपकी मर्ज़ी. मेरी कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको नहीं देना है, देना है. अगर आप अच्छा खासा प्रिपेयर हो तो दीजिए. ठीक है. और जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर सकते हो. जिनको RRB के लिए, एम्स के लिए, ESIC के लिए, DMER के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो. मुझे DM कर देना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. ठीक है. सो आई होप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड सेशन को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने कलीग्स के साथ. ठीक है. सो थैंक यू वंस अगेन. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.